Uzbillahiminesh-shaitanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum and a very good morning, students. Welcome again in my lectures. This is class 10th chemistry. It is the first chapter number 9, chemical equilibrium. So dear students, we are here to discuss chemical equilibrium, as it is the first chapter of class 9th chemistry. So let's go see what the lectures are of today's, what the topics are. Today's topics are, students, we will discuss equilibrium, types of equilibrium, chemical reaction, types of chemical reaction, chemical equilibrium. These all topics we will discuss today. Before this I start the lecture, I would like to say people, please open your book, page number 7 of chemistry. The first chapter, that's chapter number 9, chemical equilibrium. So what the chemical equilibrium is? Generally what equilibrium is, generally equilibrium means balance. Equilibrium word means balance, as we are saying equality, equal. Okay, so equilibrium means balance. What equilibrium is? The word equilibrium, this word is derived from a Latin word originally, and literally it means balance of forces. When on both sides forces are balanced, so it means that state or that system is in equilibrium. State where there seems no change in any system. जब हमारे पास किसी सिस्टम में कोई चेंज नहीं हो, उसको हम बोलते हैं कि ये सिस्टम जो है ना, ये इक्विलिब्रियम की स्टेट में होता है. So when a pencil is kept on a finger, it will be in equilibrium state. जब भी हम एक पेंसिल को अपने उस पर रखते हैं फिंगर पर, और जब तक वो बैलेंस नहीं होगा, वो एक और दूसरे साइड पर गिरता रहेगा. When a point comes, when we put a pencil on our fingers, and it becomes stable over there, so we will say that the balance, the pencil is now in equilibrium state. So this is known as equilibrium. The state where seems no change in any system is known as a equilibrium. This is equilibrium. Dear student, you people can see in this diagram, we have two red balls, two red rod-like structure, ball-like structures who are here and on the other sides. But if we fall any one of them, either of this side or of this side, so one of them will fall down, and there will be no equilibrium, there will be no balance of forces. Now the force applied on this ball and the force applied on this ball are both equal, so this system is actually in equilibrium state. Such types of state will be called as equilibrium. जब हमारे पास दोनों साइड पर एक जैसा फोर्स लगता हो, जब फोर्स बैलेंस हो. अब दोनों आप देख सकते हैं कि जो रेड बॉल्स है, दोनों के फोर्सेस जो है ना, वो बैलेंस है. तो फोर्सेस इनका क्या है कि अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस है, वो दोनों पर इक्वल अप्लाई हो रहा है. जितना फोर्स राइट साइड वाले रेड बॉल पर अप्लाई हो रहा है, उतना ही लेफ्ट साइड पे. इसी वजह से वो एक स्टेट में है, वो बिल्कुल बैलेंस स्टेट में है, क्योंकि दोनों पर एक जैसा फोर्स. अगर राइट वाले पर ज़्यादा फोर्स लगता है तो राइट वाला अर्थ की तरफ खींचा जाएगा, और ये अर्थ की तरफ जाएगा तो दूसरा भी गिर जाएगा. So they are now in equilibrium, therefore they are in rest state. Types of equilibrium, we have two types of equilibrium: the static equilibrium and dynamic equilibrium. Static equilibrium is related to rest state, while dynamic equilibrium is related to motion. When always the things are in moment, or doing moment, are in motion, that will be dynamic equilibrium. So let's come to discuss the static equilibrium. Static equilibrium is the first type of equilibrium. In this equilibrium, in which different phases of equilibrium remains in the state of rest. हम किसी भी सिस्टम में दो पेजेस रखते हैं.
जब दोनों पेज रेस्ट पोजीशन में हो, उस इक्विलिब्रियम को हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। जब दोनों साइड पर फोर्सेस सेम तो हो और वो रेस्ट में हो, वो चेंज नहीं होते हो एक दूसरे के साथ, उस स्टेट को हम इक्विलिब्रियम स्टेट बोलते हैं। इक्विलिब्रियम ऑफ अ सिस्टम हुज पार्ट्स आर रिलेटिवली एट रेस्ट, when both the parts of that system, all the parts of the system are at rest, that will be known as a static equilibrium. A static equilibrium is a type of equilibrium where both the parts of the system are in rest position, that is known as a static equilibrium. The static equilibrium is the type of equilibrium in which the different phases of equilibrium remain in the state of rest, like the case of the fulcrum and fauna or the playground seesaw. Now the example is fulcrum and fauna, playground, seesaw. These are the examples. Now we will see how the static equilibrium comes in this. यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो फलकरम है हमारे पास रेड कलर में, इस स्ट्रक्चर के उसको फलकरम बोलते हैं या फाना बोलते हैं। तो ये दोनों क्या है, अब आप लोग देखो, हम इस पूरे सिस्टम में जो पूरा डायग्राम है, इसमें यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है और यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है और यहाँ पे ये जो वो रखा हुआ है और यहाँ पर हम लोगों ने फिर जो है ना फाना रखा हुआ है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये जो पार्ट है इस सिस्टम का और ये जो पार्ट है इस सिस्टम का, दोनों इक्विलिब्रियम स्टेट में हैं, दोनों पर बैलेंस जो है ना वो इक्वल अप्लाई हो रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर बात क्या है, बात यह है कि यहाँ इस ब्लॉक के जो पार्ट्स हैं या जो पार्टिकल्स हैं और इस ब्लॉक के जो पार्टिकल्स हैं, इस ब्लॉक के पार्टिकल्स अपनी जगह रेस्ट पर है और इस ब्लॉक के पार्टिकल्स अपने जगह रेस्ट पर है। यहाँ के पार्टिकल्स, यहाँ का ब्लॉक जो है ना यहाँ शिफ्ट नहीं हो रहा है और यहाँ का जो ब्लॉक है ये यहाँ शिफ्ट नहीं हो रहा है। सो बोथ आर इन रेस्ट ऑन देयर ओन पोजीशंस बट दे आर इन इक्विलिब्रियम स्टेट। व्हेन द पार्ट्स आर इन रेस्ट, व्हेन द बोथ पेजेस of any system are in rest and they are not interconverting with each other and still they are in equilibrium state, this type of equilibrium state will be known as a static equilibrium. Is it clear, student? Come toward this point. Now there are two girl baby sitting on this play seesaw. You can see this baby neither come here nor this baby go there. Okay, so what actually is both the phases, this baby is one phase of the system and this baby is another phase of the system. यहाँ का जो सिस्टम का जो हिस्सा है, पार्ट्स हैं या जो पेज है, ये यहाँ पे नहीं कन्वर्ट हो रहे और ये जो छोटी बच्ची है ये यहाँ पे नहीं आ रही है। दोनों अपने जगह पर रेस्ट पर है, ये यहाँ पर बैठी है रेस्ट में और ये यहाँ पर बैठी है अपनी जगह पर रेस्ट में बैठी है। लेकिन इन दोनों के दरमियान जो है ना इक्विलिब्रियम क्रिएट हो रहा है। सही है, दोनों पर अर्थ की तरफ से सेम फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं बट दे आर इन रेस्ट पोजीशन, सो दिस विल बी नोन एज अ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। when I make people understand about the dynamic equilibrium, then you people can easily understand the static equilibrium. Come toward the dynamic equilibrium is the second type of equilibrium. State of equilibrium in which different phases of the system are readily interconvert in each others. By the way, dear students, यहाँ पर क्या होता है? Dynamic equilibrium means the equilibrium in which both the phases are interconvert with each other. When they are interconverting both the phases, the particles of the right side change into more into the left side and the left side particles more into the right side in any of the system, but there is equilibrium, they are interconverting in same amount. Such type of equilibrium will be known as a dynamic equilibrium. A dynamic equilibrium is a chemical equilibrium between a forward reaction and a reverse reaction where the rate of the reactions are equal. अब देखो हमारे पास केमिकल रिएक्शंस क्या है, मैं केमिकल रिएक्शन भी आप लोगों को समझाऊंगा कि केमिकल रिएक्शन क्या है। केमिकल रिएक्शन जब हम बहुत सारे कंपाउंड्स के साथ या केमिकल्स के साथ या एटम्स के साथ या मॉलिक्यूल्स के साथ एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं, दैट विल बी नोन एंड दे आर गिविंग सम प्रोडक्ट दैट इज नोन एज अ केमिकल प्रोडक्ट, केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन में क्या हमारे पास जो रिएक्टेंट है, जो चीजें रिएक्ट करती है आपस में, उनको रिएक्टेंट बोलते हैं और जो प्रोड्यूस होते हैं उनको प्रोडक्ट बोलते हैं। अब क्या है कि
जो प्रोसेस रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं, दिस इज नोन एज अ forward reaction because this process is going forward. When the products react with each other and they make again the same reactant backward, when this reaction reverse, when any chemical reaction reverse back, that is known as a reverse reaction. और इनके दरमियान जो है ना वो उनका अमाउंट जो है ना, उनका परसेंटेज जो है ना, उनका रेट जो है ना वो इक्वल होता है. सच टाइप ऑफ equilibrium will be known as a dynamic equilibrium. At this point the ratio between the reactant and product remains unchanged over time, so this is known as a dynamic equilibrium. Dynamic equilibrium के हमारे पास the example is water cycle. A water cycle क्या है, that I will make you people understand. Rate of evaporation and the rate of condensation are equal. Net change is zero. This system is said to be in equilibrium. अब water cycle में क्या होता है, water जो है ना naturally 3 phases में पाया जाता है. The water is found in 3 phases, in 3 states, in 3 forms: gaseous form, solid form and लिक्विड फॉर्म. लिक्विड फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में आइस में होते हैं, और वेपर्स की शेप में वो गैसियस फॉर्म में होता है. अब जो रेट ऑफ इवापोरेशन है, व्हेन द लिक्विड वाटर इवापोरेट्स चेंज इनटू द वेपर्स इनटू द gaseous form, that process is known as evaporation. So the rate of evaporation and the rate of condensation means when the same gaseous form of the water condensed with each other and they becomes liquid, this process is known as a condensation. तो जहाँ पर इवापोरेशन है, जब पानी लिक्विड से गैसियस फॉर्म में चेंज होता है उसको इवापोरेशन बोलते हैं. फिर जब गैसियस से वापस लिक्विड फॉर्म में चेंज होता है उसको कंडेंसेशन बोलते हैं. जब इवापोरेशन और कंडेंसेशन दोनों का रेट इक्वल हो उसको हम बोलते हैं कि अब नाउ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम. बट व्हाट हैपेंस, the liquid phase change into gaseous phase and the gaseous phase change into back into liquid phase. So they are interconverting, but the rate of interconversion is equal. They are interconvert with equal amount, with equal rate, with same rate. So there is no change in the system. जितना लिक्विड वाटर गैसियस फॉर्म में चेंज होता है उतना ही गैसियस फॉर्म वापस लिक्विड में चेंज होता है. तो पूरे सिस्टम में, पूरे वाटर साइकिल में, इसको वाटर साइकिल बोलते हैं, तो पूरे वाटर साइकिल में कोई चेंज नहीं आ रहा है. नेट चेंज इज जीरो. सो दिस सिस्टम इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम. बट दिस इक्विलिब्रियम इज नोन एज अ डायनामिक इक्विलिब्रियम बिकॉज देयर इज मोशन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ 2 phases of any system. The hydraulic cycle means the water cycle. अब यहाँ पर आप लोग आसानी से देख सकते हैं कि प्लांट्स अपटेक वाटर करते हैं. फिर आप लोगों को मैंने समझाया है 9th क्लास में कि फिर ये क्या करता है कि फोटोसिंथेसिस के दौरान स्टोमेटा के जरिए मोस्टली द वाटर इज इवापोरेट. यहाँ पर इवापोरेशन हो रहा है, ट्रांसपायरेशन हो रहा है, ट्रांसपायर हो रहे हैं वाटर इनटू द इन्वायरमेंट. और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि डायरेक्ट वाटर सरफेस से पानी जो है ना वो इवापोरेट हो रहे हैं, और यहाँ जब ऊपर चलते हैं तो ये वापस ठंडा हो जाते हैं एंड दे विल बिकम कंडेंस. ईयर कंडेंसेशन प्रोसेस टेक प्लेस, देन द वाटर कम बैक into the on the earth surface in the form of rain. फिर वापस रेन की सूरत में, बारिश की सूरत में वापस ज़मीन पर आ जाते हैं, तो प्रेसिपिटेशन में आ जाते हैं. फिर ये ड्रॉप्स की शक्ल में आ जाते हैं और जो है ना वापस आ जाते हैं पहाड़ों वगैरह पर. स्नो की सूरत में स्नो मेल्ट हो जाता है और रन ऑफ करके वापस रिवर्स में आ जाता है. यहाँ से वापस इवापोरेट होता है या फिर दरख्त इसको अपटेक करते हैं प्लांट्स, देन इन इट इवापोरेट्स. सो दिस इज अ वाटर साइकिल. नाउ यू पीपल कैन सी यहाँ पर जो लिक्विड फॉर्म है ये चेंज हो रहा है इनटू गैसियस फॉर्म, और यहाँ पर जो गैसियस फॉर्म है ये चेंज हो रहा है इनटू लिक्विड फॉर्म. देयर इज इंटर कन्वर्जन बिटवीन बोथ फेजेस, गैसियस फेज एंड लिक्विड फेज, बट दैट इज इन सेम अमाउंट, द रेट इज सेम. सो दिस is equilibrium, but this is dynamic equilibrium. Why? Because the particles move with each other. Chemical reaction. What chemical reaction is? Chemical reaction क्या होता है? Chemical reaction is a process in which one or more substances, the reactants, are convert
to one or more different substances. The products substances are either chemical elements or compounds. जब भी हमारे पास बहुत सारे एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस आपस में रिएक्शन करते हैं और वो चेंज हो जाते हैं दूसरे प्रोडक्ट में, दूसरे सब्सटेंसेस में, इस किस्म के प्रोसेस को हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं. और केमिकल रिएक्शन जो है ना वो केमिकल एलिमेंट्स के दरमियान हो सकता है, एटम्स के दरमियान हो सकता है, मॉलिक्यूल्स के दरमियान हो सकता है, या फिर कंपाउंड्स के दरमियान हो सकता है. तो जिन कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स या एलिमेंट्स के दरमियान रिएक्शन हो रहे हैं उनको हम रिएक्टेंट बोलते हैं. और उनके रिएक्शन से जो चीज़ें बनती है, जो प्रोडक्ट बनते हैं, उनको हम प्रोडक्ट्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन बोलते हैं. केमिकल टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है हमारे पास. कुछ है रिवर्सेबल रिएक्शन और कुछ है इरिवर्सेबल रिएक्शन. नाउ व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस द प्रोसेस द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, because further we are going to know what chemical equilibrium is. chemical equilibrium हमें ऐसे समझ नहीं आएगा जब तक हमें केमिकल रिएक्शन समझ नहीं आएंगे, क्योंकि केमिकल इक्विलिब्रियम जो है ना वो किसी केमिकल रिएक्शन में ही हमें नज़र आएगा. तो वहाँ से फिर हमें केमिकल इक्विलिब्रियम के सही से पता चलेगा कि व्हाट इज केमिकल इक्विलिब्रियम. Sorry students. Come to our types of chemical reaction: reversible reactions and irreversible reactions. Chemical reactions are of two types. Some of them are reversible. When they make products, they can bake their reactants, but some are irreversible. Once they make product, the products cannot change back into reverse. Let's see it. What is reversible reaction? Reversible reactions are actually backward reactions. They are two directions reactions. Those reactions that can transform their product back to reactants. वो जो अपने प्रोडक्ट्स वापस अपने रिएक्टेंट्स में चेंज कर सकते हैं, उन रिएक्शंस को हम रिवर्सेबल रिएक्शंस बोलते हैं. A reversible reaction is a reaction in which the conversion of reactants to product and the conversion of products to reactants आकर simultaneously. जब भी हमारे पास एक ऐसा केमिकल रिएक्शन मिल जाए जिसमें उनके रिएक्टेंट मिल करके प्रोडक्ट बनाते हैं और वो प्रोडक्ट वापस चेंज हो जाते हैं इनटू द रिएक्टेंट, इस टाइप ऑफ रिएक्शन को हम रिवर्सेबल रिएक्शन बोलते हैं. यानी वो रिवर्स हो सकते हैं, दे कैन बी रिवर्स बैक टू देयर रिएक्टेंट. लाइक द एग्जांपल इज गिवन हियर. Sorry, the example is given here. What the example is? Sorry students, come back to your topic. Reversible reactions. What reversible reactions are? Example is given here. Reversible reactions, the example is this. When nitrogen react with hydrogen, they will make ammonia. अमोनिया का बेस्ट एग्जांपल है. और फिर अमोनिया के नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब वापस एक दूसरे से अलग होंगे तो वापस हाइड्रोजन गैस बनाएगा और नाइट्रोजन गैस बनाएगा. तो ये एक रिवर्सेबल रिएक्शन है. और दिस साइन शोज दैट दिस रिएक्शन कैन आकर फ्रॉम दिस साइड एंड कैन आकर फ्रॉम दिस साइड. सो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं. नाइट्रिक ऑक्साइड ब्रेक डाउन हो जाता है तो ये वापस उसमें चेंज होता है अपने रिएक्टेंट. तो ये आपके पास रिएक्टेंट हो गए और ये आपके प्रोडक्ट हो गए. और आपके प्रोडक्ट वापस तोड़ करके वापस आपका रिएक्टेंट बना सकते हैं. NH4Cl अमोनियम क्लोराइड अमोनिया बनाता है और HCl बनाता है. वापस ये आपस आपको जब ये आपस में मिलते हैं तो आपको ये अमोनियम क्लोराइड दे सकते हैं. इसी तरह ये सारे आपके वो हैं रिवर्सेबल रिएक्शंस. यू कैन सी इट. नाउ come toward the irreversible reaction. Irreversible is actually opposite to the reversible. Irreversible ऐसे होते हैं जो रिवर्स नहीं हो सकते हैं. Once they occur, they cannot come back to their reactant. Those chemical reactions that cannot be reversed back to reactants, one-sided reaction, one direction reactions, once they occur, when the reactant react with each other, they make some of the products. Those products cannot make again their reactants. Such type of reactions will be known as irreversible. They are not reversible. They are not able to come back. A reaction cannot take place in the reverse direction. The product formed do not react to give back to reactants under same condition is called an irreversible reaction. What the example is? Irreversible reactions are chemical reactions. They take place in one direction only. Once they occurs from reactant to product, they cannot back from product to reactant. It comes until at least one of the reactant is used of.
एक बार एक रिएक्टेंट, एटलीस्ट वन ऑफ द रिएक्टेंट इज यूज्ड अप, एक बार एक रिएक्टेंट यूज होता है और जो है ना फिर वापस वो रिएक्टेंट नहीं बना सकता है। कंप्लीट रिएक्शन इट इज, या एक्चुअली इरिवर्सेबल रिएक्शन, ये कंप्लीट रिएक्शन होता है, क्योंकि रिवर्सेबल रिएक्शन जो है ना वो कंप्लीट नहीं होती, वो वापस रिएक्टेंट में चेंज होते हैं और रिएक्टेंट से वापस प्रोडक्ट में, फिर रिएक्टेंट में, फिर प्रोडक्ट, तो रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता है, बल्कि इरिवर्सेबल रिएक्शन जो है ना वो कंप्लीट हो जाते हैं, वो कंप्लीटली रिएक्शन डन हो जाता है, उसके बाद फिर कोई रिएक्शन आगे नहीं होता है। एग्जाम्पल इज गिवन ईयर ऑफ द सोडियम हाइड्रोजन वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, फिर वापस इनसे वापस ये रिएक्टेंट नहीं बनते। देखो द एरो साइन शोज दैट द रिएक्शन इज वन साइडेड, ओके, वन डायरेक्शनल। इसी तरह HCl और हाइड्रोजन के साथ H3O एंड Cl पर ये वापस चेंज नहीं होता। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द इरिवर्सेबल रिएक्शंस। What chemical equilibrium is? Now we are on our own point. Our main topic is this. हमारा मेन टॉपिक यही है। पीछे जो मैंने आप लोगों को समझाया वो सारा इसी से रिलेट है कि इक्विलिब्रियम, जनरली इक्विलिब्रियम होता क्या है और इक्विलिब्रियम के टाइप्स कौन कौन से हैं, और जो है ना फिर केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, रिवर्सेबल इरिवर्सेबल केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, वो सब जब आपको समझ आ जाएंगे देन वी गो टू आवर मेन टॉपिक विच इज़ आवर चैप्टर टाइटल एज वेल, केमिकल इक्विलिब्रियम। वैसे तो इक्विलिब्रियम हमें समझ आ गया, लेकिन केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है? इक्विलिब्रियम तो हमें समझ आ गया व्हेन देयर आर सेम फोर्सेस ऑन बोथ साइड ऑफ एनी केमिकल ऑफ एनी सिस्टम, उसको हम बोलते हैं कि द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। लेकिन केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है? इन अ केमिकल रिएक्शन, लिसन इट केयरफुली, गौर से सुने, इन अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्विलिब्रियम इज द स्टेट, केमिकल इक्विलिब्रियम इज द स्टेट in which both the reactants and the products are present in concentrations which have no further tendency to change with time. So there is no observable change in the properties of the system. This is known as a chemical equilibrium. जब भी हमारे पास किसी भी एक केमिकल इक्विलिब्रियम में हमें प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में कोई चेंज नज़र ना आ जाए, उसको हम बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। जब किसी केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट और रिएक्टेंट एक दूसरे के सेम कंसंट्रेशन में हो, उसको हम बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। व्हेन वी फाइंड एनी इक्विलिब्रियम स्टेट इन एनी केमिकल रिएक्शन, जब हमें किसी केमिकल रिएक्शन में किसी भी स्टेज पर इक्विलिब्रियम मिल जाए, उस इक्विलिब्रियम को हम केमिकल इक्विलिब्रियम समझते हैं। इज इट क्लियर नाउ? Come toward the equilibrium. Here people can see we have reactant A and reactant B. These both reactant are reacting with each other and they are giving product AB. We may think that all reactions change all reactants to product, or the reaction has gone to completion. But in reality, products may start to change back into reactants. The reaction is reversible. जब हम वैसे समझते हैं, जनरली हम क्या सोचते हैं, हम कहते हैं कि रिएक्टेंट्स आपस में मिलती हैं और वो प्रोडक्ट बनाते हैं, लेकिन रियलिटी में क्या होता है कि जब रिएक्टेंट आपस में मिलती हैं वो प्रोडक्ट देते हैं, फिर यही प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में भी चेंज होता है, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। ए बी इज आवर प्रोडक्ट बट इट अगेन चेंज इनटू ए प्लस बी विच आर आवर रिएक्टेंट्स। तो ये पर आपको केमिकल इक्विलिब्रियम मिल रहा है। जितना आपका रिएक्टेंट आपस में मिल रहा है उतना आपका प्रोडक्ट बन रहा है, उतना ही वापस प्रोडक्ट आप रिएक्शन करके उतना ही आपका रिएक्टेंट वापस बना रहा है। सो देयर इज इक्विलिब्रियम इन दिस टू पेजेस, इस पेज में और इस पेज में, दोनों में, प्रोडक्ट पेज में और रिएक्टेंट पेज दोनों में आपको इक्विलिब्रियम मिल रहा है। और ये इक्विलिब्रियम आपको कहाँ मिल रहा है? एक केमिकल रिएक्शन में, आपको जनरल लाइफ में नहीं मिल रहा है। एक केमिकल रिएक्शन में आप इस इक्विलिब्रियम को ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसी वजह से इस इक्विलिब्रियम को केमिकल इक्विलिब्रियम बोलते हैं, बिकॉज इट इज ऑब्जर्व्ड इन अ केमिकल रिएक्शन। I hope it is clear. Now what is the definition of the chemical equilibrium? Such a equilibrium, chemical equilibrium is such a equilibrium where the rate of product C and D, which was mentioned in the previous slide, in this slide,
when the product of the C and D are produced is equal to the rate of reactant A and B are produced is called chemical equilibrium. जहां पर आपका प्रोडक्ट का रेट सी डी का रेट आपके रिएक्टेंट के ए बी के साथ, ए बी हमारे पास रिएक्टेंट है और सी डी जो है ना हमारे पास प्रोडक्ट है, जब आपके प्रोडक्ट का रेट आपके रिएक्टेंट के रेट के बराबर हो जाए दैट इज नोन एज अ केमिकल रिएक्शन. Once again, take care of this thing that this is observed in a chemical reaction, so will be known as a chemical equilibrium. Now here you people can see hydrogen and iodine, they are reacting with each other. हाइड्रोजन और आयोडीन एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं आसानी से, और ये बना रहे हैं हाइड्रोजन आयोडाइड. ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, लेकिन ये हाइड्रोजन आयोडाइड वापस रिएक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ, वापस ब्रेक डाउन करेंगे, तो ये हाइड्रोजन और आयोडीन आपको बना के देंगे जो कि यहाँ पर शो किया गया. ये रिवर्स रिएक्शन है, क्योंकि ये जो रिएक्शन ये असल में यहाँ से रिवर्स हो गया, बेक हो गया इनटू देयर रिएक्टेंट जो कि यहाँ पर बना दिया. तो ये आपका फॉरवर्ड रिएक्शन है और ये आपका रिवर्स रिएक्शन. लेकिन यू कैन सी आपका रिवर्स रिएक्शन और आपका फॉरवर्ड रिएक्शन वो दोनों जब होते हैं तो वो एक जैसे होते हैं, वो स्टेट होते हैं, वो इक्वल होते हैं, इसको इक्विलिब्रियम बोलते हैं. और ये इक्विलिब्रियम आपको कहाँ मिल रहा है? एक केमिकल रिएक्शन में मिल रहा है, तो इस इक्विलिब्रियम को हम क्या नाम देंगे? chemical equilibrium नाम देंगे. And this is the end of the topic. If there is any confusion, you can contact me on WhatsApp as well. My WhatsApp's contact is present in the group. And if you misplace this lecture, you can watch it back. You can watch it later on my YouTube channel, Mohammad Rahim Khan Official. So if there is any confusion, you can ask anytime. Thank you for today's lecture. Thanks to all of you.